السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ فیاض نائٹ سگد میں ہاں جو میزبان فیاض نائٹ گفتگو کناسوں ملک جو اہم سیاسی معاملن تے سب کا اہم سیاسی معاملو ہن وقت جو ہیڈ لائنز جی زینت بنل ہے وہ ہے ملک کے اندر آئینی ترمیم وارو معاملو جہتے اگے بھیرے اصل ڈٹھو تو حکومت کوششوں کیوں بنی ایوان جو اجلاس ڈایا گیا ملاقاتوں مولانا فضل الرحمان جو جکا رہائش گاہ ہوئی وہ اسلام آباد میں ملاقاتن جو مرکز ہوئی ایکڑو وفد اچے پیو ایکڑو وفد ونے پیو پی ٹی آئی جو وفد ونے پیو تو حکومت جو وفد اچے پیو بلاول صاحب بیا سمورا معاملہ پر اصل ڈٹھو تو وہ آخر میں کچھ بھی نہ تھو ڈیولپمنٹ نہ تھی ایوان جے وہ بغیر کچھ فیصلوں کئے وہ اجلاس ملتوی کیا گیا ان حوالے سے جے بعد میں ڈیولپمنٹس تھیوں ان کا واقف آئے تو وہ جو مسودن کی گال تھی ڈرافٹ کی گال تھی ان کا جے ملاقاتوں تھیوں پر بہرحال ہانے ایک دفعہ بیہر ان میں اساں کے تیزی نظر پہ اچے ڈرافٹ سامو آیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈرافٹ بھی سامو اچی ہوا بے طرف مولانا فضل الرحمان صاحب چوا تو انہوں کے حکومتی ڈرافٹ ملی ہوا ہے ٹرین طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے وچ میں ملاقات جگہ تھی ان کے بھی کافی اہمیت نہیں پی ونے یہ آئینی ترمیم وارو معاملو ملک جو مجموعی طور تے جو سیاسی ماحول ان میں ایکڑو بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ ڈیولپمنٹ کے پی کے کے اندر تھی وہ کے پی کے اندر ڈیولپمنٹ یا تھی تو اتنے ایکڑو جرگو سڑائے وہ جن جرگے میں پنجو علی امین گنڈا پور صاحب ان کی میزبانی کئی پر ان دعوتوں جو ڈنوں ان میں گورنر کے پی کے کنڈی صاحب کے بھی ان دعوت نہیں ان کے علاوہ ایم ایل ولی خان صاحب سمیت بی جکا کے پی جی لیڈرشپ سموری لیڈرشپ ایک جگہ تے ویٹھی اتفاق رائے سے یہ فیصلو کیو تو پی ٹی ایم سے گفتگو کرنے لائے جکا ہے وہ علی امین گنڈا پور کے پہلو انچارج کیو انہوں نے نیگوسیشن رات یہ جکا ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہے سیاسی طرح تے جکا کے پی کے اندر اساں نظر آئی وہ آئینی ترمیم تے کیترو امپیکٹ وجھندی ان حوالے سے کا پیش رفت تھی سگے تھی یا نہ تھی سگے چھکان اساں ڈٹھو تو اگے جکا ایفرٹ ہوئی ان ایفرٹ میں پارلیمنٹ جی خصوصی کمیٹی ہوئی سید خورشید احمد شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ کافی متحرک ہوئی تو چھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ خیال ہو تو گریٹر کنسنسس جو آئینی ترمیم لائے ٹھہرن گھرجے چھا معاملہ ان طرف دن پیا یا ہانے مولانا فضل الرحمان صرف آن بورڈ ان کے وقت ویندو ہے حکومت جکا یا آئینی ترمیم لا ویندی ان معاملے تے گفتگو کناسوں خود آئینی ترمیم جا جے ڈرافٹ سامو آیا ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈرافٹ ہے وہ تو جوڈیشری سے متعلق ہے پنجو ان میں جو ارنی پنجو سی او ڈی کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ آئینی عدالت کی گال ہوئی ان تے ہے ججن کی تقرری مقرری کے بارے میں جو طریقہ کار ہے ان تے فوکسڈ ہے پر چھا حکومتی ڈرافٹ کے اندر جو بیا نقطہ ہوا وہ بھی ہانے آئینی ترمیم جو حصہ تھیندا یا نہ تھیندا ان تے بھی گفتگو کناسوں جو پروگرام میں حسب روایت اساں کے بئی اسنا پولیٹیکل اینالسٹ کے سائنس سہیل سانگی صاحب جناب اعجاز احمد صاحب اساں گڈن اٹھو تم گفتگو کرتے ہوں جی سانگی صاحب اعجاز احمد صاحب کا حال وال وٹھو تھا پہرے تو اسلام آباد کے اندر ان ڈرافٹس ان ایفرٹس کے حوالے سے چھا تھی آیا اعجاز احمد صاحب ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا کہ اب تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ان ڈرافٹس کے اندر کیا ہے اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی شاید کچھ دن اور جو ہے وہ اس پر جو مشہور زمانہ جملہ ہے کہ آئینی ترمیم تو ہو کے رہے گی، میرے خیال میں وہ آپ کا جملہ جو ہے وہ اب رنگ لا رہا ہے کہ آئینی ترمیم تو ہونے جا رہی ہے۔ جی یقینی طور پر رنگ لا رہا ہے کیونکہ آج یہ جو آج کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں اس سے باہر نکلے تو مولانا فضل الرحمان بھی بڑے پر امید دکھائی دیے، بڑے پر اعتماد دکھائی دیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے مل کر گئے ہیں اور اب مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی مسودے میں ہم جو نقائص ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مسودہ مل گیا ہے لیکن مولانا نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ مولانا کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 19ویں ترمیم ختم کر دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 19ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم میں یہ جو ججز اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا اس کو تبدیل کروایا گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے پروفیشنلی وہ بہت ساؤنڈ مسودہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو بالکل الگ کر دیا ہے، سو ووٹوں کو جو اختیارات ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور پھر 186 کے تحت جو اختیارات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی بات کی ہے کہ 186 کو ہی ختم کر دیا جائے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو انہوں نے ایک خاص اہمیت دی ہے۔ پھر صوبوں میں کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے نا ان کو ایگری کیا وہ تجویز دی ہے۔ اب اس میں بلاول بھٹو زرداری سے میری 2-3 روز پہلے گفتگو ہوئی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
अगर वफाकी सतह पर भी आईनी अदालत पर सारे फरीक एग्री हो जाए और प्रोविंशियल आईनी अदालत पर ना एग्री हो तो बिलावल भुट्टो के लिए ये भी एक विन विन सिचुएशन होगी। मौलाना फजल रहमान अपनी जो है वो डीलिंग की पोजीशन को मेरे ख्याल में बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कुछ इतलात ऐसी हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि मौलाना कुछ और चीजें चाहते हैं। वो जो खबरें छप रही थी उनके बारे में कि वो गवर्नर चाहते हैं, वो वुज़रा चाहते हैं, 4 वफाकी वुज़रा, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और भी चाहते हैं। और मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे ज़राए भी ये कहते हैं कि मौलाना की नजरें मुझे दिखाई देती हैं सीएम बलूचिस्तान के ओहदे पर, और वो मौलाना आप ये चाहते होंगे हैं कि सीएम बलूचिस्तान का ओहदा उनकी पार्टी को मिल जाए। इस पर मैंने जब पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो तो ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ मैंने देना है, उनको गवर्नर केपी भी मैंने देना है और सीएम बलूचिस्तान भी मैंने देना है, तो फिर नून लीग क्या देना चाहती है। और ये इन जमातों के दरमियान ये छोटे छोटे मामलात पर ही जो बदअतमादी है ये दिखाई देती है। और अगले दिनों में मुझे लगता है कि मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अपनी जगह पर हैं मौजूद, लेकिन बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर आ चुके हैं। सिर्फ हुकूमती मुसवदा जो है उसमें कुछ बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं तरामीम हो जाए, मौलाना भी चाहते हैं, और हुकूमत को अगर कुछ आईनी तरमीम मंजूर करवानी है तो फिर कुछ शराइत तो उसको तस्लीम करना पड़ेंगी। बड़ी अहम बात की आपने 19वीं तरमीम की बात, क्योंकि वो जो अब एक मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो मुझे अपना तौहीन अदालत के जुमरे में न ले जाए, लेकिन जो 19वीं तरमीम थी वो एक जुडिशल ब्लैकमेलिंग थी जो अपना उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब की सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि आइन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जब 18वीं तरमीम पास कर ली तो फिर उसके ऊपर एक दरख्वास्त गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर फरमाइश की गई अपना उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आपकी 18वीं तरमीम में जो मामलात हैं जजों की मुकर्ररी और अदालती मामला के हवाले से उनको हमारे मर्जी के मुताबिक आप तरमीम करें, और वो तरमीम जब तक पास नहीं होगी तब तक मैं 18वीं तरमीम के हवाले से वो नहीं करेंगे। तो वो जो जुडिशल ब्लैकमेलिंग का अपना वो एक हमारी तारीख में वो उसको एक पड़ा हुआ है, अगर एक चैप्टर है, अगर उसको खत्म किया जाता है तो मेरे ख्याल में ये भी एक मस्बत कदम होगा, क्योंकि हमने आइन में और हमारे उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर जो जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस था उसको हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो अपना फेयर ट्रायल नहीं था, तो उस धब्बे को हमने धोने की कोशिश की है। जिस तरह हमने आइन के अंदर जो तरामीम हुई जो अपना मुशर्रफ ने और जनरल ज़िया के अमरीती दौरों के अंदर हुई, हमने उसको 18वीं तरमीम के जरिए जो है उसको काफी साफ किया आइन को, उन जो पॉल्यूट किया था अमरों ने आइन को, हमने उसको साफ किया। इसी तरह 19वीं तरमीम भी एक डॉट है हमारी, एक धब्बा है हमारी तारीख के ऊपर, अगर उसको भी साफ करने की कोशिश की जाती है तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर होगा। सांगी साहब तहां इन सॼी डेवलपमेंट से एजाज़ साहब जी ॻाल्हि ॿुधण खां पोइ तहां जा छा टेक आहे उन ते? आप इलाही मालूमाती ॻाल्हि कई आहे। इहो हाणे त सफ़ा इहा ॻाल्हि साम्हूं अची आहे त इहो जेको तरमीमनि जो ड्राफ्ट आहे, जेका तजवीज़ आहे, इहो को हिकिड़ो ड्राफ्ट कोन्हे, कई ड्राफ्ट हुया जेके इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ इन सियासी ऐं पार्लिमानी, थोरे गैर सियासी ऐं गैर पार्लिमानी सभिनी हल्कनि में हलिया पए। उन में हिकिड़ो त पीपल्स पार्टी जो हुयो जंहिंजी ॻाल्हि एजाज़ साहब बि कई पे, उन में मुंहिंजे ख़्याल में हाणे जेको आख़िरी उन जो ड्राफ्ट मौलाना साहब सां शेयर कयो वियो आहे उहो मुख़्तलिफ़ आहे अॻियनि खां। ॿी जेका मूंखे अंडरस्टैंडिंग आई हुई उहा इहा हुई त PMLN पंहिंजो ड्राफ्ट पोएं कंहिं मरहले ते वापसि वठी छॾियो ऐं इहो सॼो इहो पियो हलियो त हाणे इन खे पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट जेको हुन जो आहे उहो ऐं बाक़ी जेके मामला आहिनि सियासी धुरनि सां ॻाल्हाइण जा ॿोलाइण जा उहे सॼो पीपल्स पार्टी करे। त इन जे करे ही हिकिड़ी ॻाल्हि आई पई ऐं उन में मतिलबु त जहिड़ो कर कुझु ॾींहंनि लाइ PMLN इन सॼे आइनी जेके मामलनि खां तरमीमनि जे हवाले खां पंहिंजे पाण खे पोइते रखियो। ऐं तॾहिं इहा बि ॻाल्हि आई पई त हीअ त जेको पीपल्स पार्टी आहे उहा त हिकिड़ो चाहे पई जेका आइनी अदालत आहे उन जो, प्लस इहो त जजनि जी जेका मुक़ररी आहे या उन जेका नए सिर अपॉइंटमेंट आहे वग़ैरह
उन में पई कुझु शयूं चाहे, पर PMLN उन खां वधीक कुझु शयूं पई घुरे। हाणे अॼु जेका हाणे मुलाक़ात थी आहे मियां साहब सां, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी, त उन में कुझु शयूं यकीनन क्लियर थियूं हूंदियूं, पर हीउ हिकिड़ो इन्हनि ॿिन्ही पार्टियुनि जे विच में हिकिड़ो झोल शयुनि जो रहियो जंहिंखे वॾी हद ताईं उहो कयो आहे। पर अञा ताईं मगर इहो सूरत हाल कीअं वधीक डेवलप थींदी, छाकाणि जो जॾहिं वोट थींदो त वोट 2/3 वारो जेको वोट आहे उहो रिज़र्व सीटनि वारो जेको इशू आहे उन जे करे केतिरो इफेक्टिव थींदो ऐं उनखे कीअं मैनेज थींदो, इन खां हटी करे त मौलाना साहब जेको आहे सो हुकूमती इतिहाद सां गॾु बीहे थो तरमीमनि में या न। अच्छा एजाज अहमद साहब, पर सांगी साहब तव्हां खां मां हिकिड़ो सुवाल कंदुमि। हिन सॼे मामले में जेका एजाज अहमद साहब ॻाल्हि कई, तव्हां बि उनखे हो कयो त हाणे हू आम तौर ते इन तरह जा इनिशिएटिव जेका हूंदा आहिनि उहो गवर्नमेंट वठंदी आहे, पर PMLN ॼण चओ त हिन आइनी तरमीम जे हवाले सां सेकंड रो में सेकंड नंबर ते बीठी आहे। हाणे फ्रंट ते जेको आहे लीडिंग रोल जेको आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे, ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी में बि आम तरह ईअं हूंदो हुयो त जॾहिं इहे मैनूवरिंग थींदी हुई, असांखे यादि आहे जॾहिं नो कॉन्फिडेंस मूव आई पए PTI जे गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़, त तॾहिं ज़रदारी साहब उन्हनि सॼी मैनूवरिंग खे लीड पिया कयो। पर हिन भेरे जेका मैनूवरिंग आहे उहा सॼी जेका आहे उहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाण पिया कनि बहसियत चेयरमैन जे। उहे बलोचिस्तान विया, फजल रहमान साहब मिलिया, नवाज शरीफ साहब मिलिया, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलिया, सॼी जेका आहे इफ़र्ट जेका आहे लाहौर विया, बार्स खे ख़िताब कयो, त अवामी सतह ते बि हू माण्हुनि खे पंहिंजो वुकला बिरादरी खे उन ते कन्विंस पिया कनि त उहो शेयर पिया कनि पंहिंजो ख़्यालु त असां छा था चाहियूं, ऐं साॻे वक़्तु जेके मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सां बि हो कनि पिया। त ख़ुदि PMLN जो पोइ ते वञणु नंबर 1, ॿी ॻाल्हि त पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब जो सॼी मैनूवरिंग खे पाण लीड करणु ऐं ज़रदारी साहब जो ख़ामोशी सां प्रेसिडेंसी में वेही रहणु, इन्हनि ॿिनि डेवलपमेंट्स खे तव्हां कीअं था ॾिसो? त ज़ाहिर बिलावल साहब खे जेको इन सॼी आइनी हवाले सां मैन्यूरिंग जो इन सॼे जो जेको आहे सो हिकिड़ो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस थींदो जेको अॻु में ओड़े हिसाब सां कोन हुयो। बाक़ी हू जेका थींदी आहे इन जे लाइ जेका त भई नो कॉन्फिडेंस जे मौक़े थींदो आहे, त नो कॉन्फिडेंस जे मौक़े ते जेके ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आहिनि उहे बिल्कुलु इन खां डिफरेंट हूंदियूं आहिनि जेके आइनी सांगी साहब वक़्फे खां पोइ मोटी जी गुफ्तगू खे अॻिते वधाइनि था। एजाज अहमद साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं इन आइनी तरमीम जे हवाले सां जो जेका सांगी साहब ॻाल्हि कई आहे त 2/3 जो वोट जेको आहे उनमें छा थींदो, ऐं कंसेंसस जी जेका ख़्वाहिश जेका मौलाना साहब जेका कंदो रहियो आहे त हिकिड़ो ग्रेटर कंसेंसस ते उन जो छा पंहिंजो आउटकम थींदो, उन ते गुफ्तगू कंदासीं वक़्फे खां पसंदि करे। वेलकम बैक डॉक्टर प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अंदरि आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां जेके एफर्ट्स थियनि पियूं उन हवाले सां। एजाज अहमद साहब, दो नुकात पे मैं चाहूँगा कि आप अपना व्यू पॉइंट हमारे नाज़रीन से शेयर करें। एक तो ये जो सांगी साहब ने 2/3 अपना मेजॉरिटी के लिए नंबर गेम की बात की, और फिर उसमें जो है वो अपना रिजर्व सीट्स का मामला जो है वो अभी तक वो किस करवट किस ऊंट किस करवट बैठेगा वो मामला भी है। लेकिन आज मौलाना साहब ने भी जो बात की है वो कहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अपना इजलास के लिए अपोजिशन को उसने कहा है कि वो एहतजाज न करें। फिर हमने KPK के अंदर देखा कि वो अपना एक सब पार्टियां मिलके बैठी। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी जो सियासी इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर, और जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाएंगे, क्या आइनी तरामीम के हवाले से उस ब्रॉडर कंसेंसस के हवाले से भी कोई अपना खबर है, कोई डेवलपमेंट्स हैं, कोई एफर्ट्स हैं? कंसेंसस पर जाना चाहते हैं तो फिर कुछ चीजों में आपको खुद भी जो है ना वो अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आना पड़ता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो आइनी तरामीम के मामले में तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और लेकिन एक बदकिस्मती खैर ये भी है जो मैं पिछली उसमें रह गया था सवाल में कि इस वक्त सिर्फ एक ही मुसवदा सामने है, और वो मुसवदा है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हुकूमत ने मुसवदा मौलाना को तो दे दिया,
लेकिन वो पब्लिक नहीं किया उसको, मतलब मीडिया के साथ शेयर नहीं किया। तो अब वो मीडिया के साथ क्या बनेगा, इसका एक बात तो ये है, वो उसमें क्या चीजें शामिल हैं, मौलाना क्या चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो वो हमको पता जब चलेगा तो तभी बात होगी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पीटीआई भी एक अहम फैक्टर है। मौलाना थोड़ा पीटीआई के दबाव में भी है। मौलाना पीटीआई के दबाव में इसलिए दिखते हैं कि मौलाना को अपने वोट बैंक की फिक्र भी है कि कहीं जो थोड़ा बहुत वोट बैंक रह गया है वो कहीं पीटीआई ना ले जाए, क्योंकि पीटीआई का इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा जोर दिखाई देता है। तो मौलाना चाहते हैं कि पीटीआई को भी साथ में डालें, और पीटीआई को पकड़ाई देने पर तैयार नहीं है। आज भी उनका रवैया ये था कि ये तरानीम जो है ये लंबे अरसे के लिए मौखर कर दे और बस डिस्कशन करते रहें, ठीक है ना। तो ये इस सारी सूरत हाल में जब आप दीगर मामला को इसमें शामिल करेंगे तो फिर जब तक आप कुछ लोग कुछ दो नहीं करते तो आप मामला को हल नहीं कर पाते। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ जिरगा, उसमें अली अमीन गंडापुर ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने वजीर दाखिला को भी फोन किया, उन्होंने गवर्नर को भी फोन किया, और उसके बाद कल वो एक ब्रॉडर कंसेंसस पर पहुंचे। पीटीआई अपनी पोजीशन से अली अमीन गंडापुर थोड़ा सा पीछे आए तो वो उस कंसेंसस को डेवलप कर सके ना, जिसके नतीजे में वो जिरगा होना तय पा गया है। अब वो रेटोरिक में आप जो मर्जी कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर आपने जो है उसकी राह हमवार की। मौलाना को भी यही करना पड़ेगा कि अगर मौलाना अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते तो फिर उनको अपनी कुछ शराइत से पीछे आना पड़ेगा। अच्छा सांगी साहब, तव्हां छा था ॾिसो जीअं को सवेर अॻु सवाल कयो त हिन में जेका एजाज़ अहमद साहब बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ो त लीड रोल पीपल्स पार्टी अदा करे पई, ऐं नतीजे तौर ते जेका मौलाना जूं जेके नज़रूं आहिनि गवर्नरशिप ते केपी जे अंदरि या चीफ मिनिस्टरशिप ते बलोचिस्तान जे अंदरि, त मतिलबु आहे हू ॾियणो बि पीपल्स पार्टी खे आहे। नून लीग बैक सीट ते वञी वेठी आहे ऐं हुनखे इहा आहे त मूंखे ॾियणो कुझु कोन्हे, किथे बि हुनखे कंहिंखे बि अकोमोडेट करण लाइ पंहिंजी कंहिं पोज़ीशन तां विथड्रॉ थियणो न आहे। इहा जेका सूरत हाल आहे, हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माना पाकिस्तान जे आइन जे बहितरी जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो कुझु न कुझु पंहिंजो शेयर सेक्रीफाइस कंदी। बज़ाहिर त इहो ई थो लॻे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहो जेको चयो पियो वञे इहो हुकूमती मसौदो आहे। अच्छा, हाणे मसौदो जी एजाज़ साहब बि ॿुधाए पए त इहो पीपल्स पार्टी जो मसौदो आहे। हाणे इहो तय थियणु अञा ताईं बाक़ी आहे त जेको मौलाना साहब खे मसौदो ॾिनो वियो उहो हुकूमती जो मतिलबु इहो थींदो त पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ॿिन्ही जो गॾियल, या इहो त भई जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जे लाइ चइजे त इहो इतिहादी आहे ऐं मेन जेको आहे PMLN आहे, पोइ हुनजो त इहा ॻाल्हि अञा वाज़ह कोन्हे। ॿी जेका हिन में इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि बीहे थी उहा इहा थी पई त जो ख़ुदि मतिलबु त PMLN जे तरफ़ां इन बारे में का बि घणी चिटाई न पई अचे। हिन खां अॻु में जेके ॻाल्हियूं उन में इहो त भई पीपल्स पार्टी वारियूं जेके बि इहे तरमीमूं आहिनि इहे समवेयर जुडिशरी सां ई रिलेटेड आहिनि ऐं बाक़ी कोन आहिनि। जेको PMLN जो हुयो उन में आख़िर ताईं जेके मूंखे इतला हुया त उहे इन ते बीठा हुया त इन खां अलावा एतिरे क़दुरु जेको बुनियादी हक़नि सां रिलेटेड शयूं आहिनि उन ताईं बि मतिलबु त मामले खे छेड़छाड़ कजे, होसि ताईं वञिजे, त हीअ हिकिड़ी ख़तरनाक हिकिड़ी ॻाल्हि थिए थी। त आउं सम्झां थो त इनखे सॼो पीपल्स पार्टी हाणे ऑन करे पई, ऐं जेकॾहिं PMLN हिन खां हटे थी त उन जे नतीजे में ख़ुदि उन खे पंहिंजो ग्राउंड ॾाढो मतिलबु त बरक़रार रखणु अञा वधीक ॾुखियो थींदो। ऐं ख़ासि तरह सां जेकॾहिं बिलाल भुट्टो साहिबु इहे सभु शयूं जीअं करे पियो ऐं तरमीम या कराए वञे थो त पोइ हुनजी हिकिड़ी बहितर हिकिड़ी पोज़ीशन उन में बीह सघंदी। बाक़ी जेको ॿुधायो आहे जीअं एजाज़ साहब बि ॿुधाए पए त मौलाना साहब खे इहो आहे त भई सॼो PTI जो दॿाउ आहे जीअं उते उन KP सूबे में। मूंखे हिकिड़ी ॿी शइ थींदी नज़र थी अचे, उहा इहा थींदी थी नज़र अचे त ईंदड़ वक़्त में जेको KP जो नुमाइंदो हुजे, नुमाइंदा पार्टी जेका हुजे उहा जेका आहे सा JUIF उहा बणिजे थी। इन खे ही ॿई जेके पार्टियूं उहे बि मञता ॾींदियूं, PMLN ऐं पीपल्स पार्टी। ऐं प्लस इहो त PTI खे छाकाणि जो हुकूमत उन खे स्पेस ॾियण लाइ बि तयारु कोन्हे, प्लस इहो त उन में जेके बि अंदरि जेके बि शयूं
कुकअप थियनि पियूं उहो, ऐं जेको गंडापुर वारो हिन जरगे वारो उहो तजुर्बो कयो उहो बि हिकिड़ो कामयाबु तजुर्बो ई आहे न। त इन सॼे में मौलाना खे जेका अहमियत बि ॾिनी पई वञे इन सॼे प्रोसेस में इन जो भी हिकिड़ो पार्ट थी सके थो। अच्छा, अब एक और पहलू इसका देखते हैं एजाज अहमद साहब, और मैं चाहूंगा कि दोनों हमारे पैनलिस्ट उस पर अपना करें। ये सारा कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर आईनी तरमीम हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एफर्ट कर रहे हैं, और उसका जो उसकी पार्टी का वोट बैंक है जो आखिरी इलेक्शन तक वो उनकी 2 सूबों के अंदर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर उनकी हुकूमत भी है। फजल रहमान साहब की बात हो रही है, उसका अगर जो वोट मिला है बलूचिस्तान और केपीके से मिला है। पीएमएलएन के बारे में हम कह रहे हैं कि वो बैकफुट पे चली गई, पीटीआई जो है वो इस वक्त दूसरी तरफ खड़ी हुई है। तो आईनी तरामीम के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जहां से मोर देन 50% जो अपना पॉपुलेशन है और रिप्रेजेंटेशन जो कौमी असेंबली के अंदर है वो अपफ्रंट नहीं है। सारी जो बार्गेनिंग और बातचीत हो रही है वो 3 सूबों के रिप्रेजेंटेटिव और उनके साथ उनके दरमियान हो रही है। यानी पंजाब जो है वो उसमें इस सारी नेगोशिएशन में उसका कोई कलीदी रोल हमें नजर नहीं आता, नंबर 1। फिर ये जो सारी तरामीम हैं, बिलावल साहब जिस तरह आगे जा रहे हैं और जो इस तरह वो अगर पीपल्स पार्टी कहीं से कुछ दे के भी मौलाना साहब को उस पर ले आती है, तो पीपल्स पार्टी को पंजाब के सियासी मंजरनामे में उस सारी चीजों को अपना वो करने के लिए, अपना मटेरियलाइज करने के लिए, अपनी पोजीशन के लिए वो कितनी फायदेमंद होगी। क्योंकि फिलहाल पीपल्स पार्टी तो कब से ये कोशिश कर रही है कि वो जो 2013 की इलेक्शन में गन पॉइंट पे उनको जो है धकेल के जो पंजाब से उनको धकेला गया था, पीपल्स पार्टी को अब तक वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा पंजाब की सियासी मंजरनामे के ऊपर। आखिरी इलेक्शन तक भी कोई जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद अपना सदरन पंजाब के अंदर कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए अपना सीटों के हवाले से तो वो कोई अपना इम्प्रेसिव नहीं थे। तो आपके ख्याल में ये सारी जो प्रैक्टिस है जिसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर अगर वो कुर्बानी भी देते हैं, तो पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है उसमें पीपल्स पार्टी के लिए क्या स्पेस बनते देख रहे हैं? इसका कोई इम्पैक्ट भी है या नहीं होगा उसका? देखो ना, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये टास्क उठाया है ना, ये उन्होंने अपने आप को एक तो लीडर साबित करने के लिए उठाया है। दूसरा ये कि वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को ये यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। ये बुनियादी बड़ा फर्क है। 2018 में अगर आप चले जाएं तो पीटीआई और पीएमएलएन दोनों, और फिर 2024 साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वक्फा उठा वक्फे का प्रोग्राम करते हुए समझ लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचूक प्रोग्राम सिलसिले के बताएं गुफ्तगू हलंदड़ आहे आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क जो सियासी मंजरनामो पर इन सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एफर्ट्स वठे पियो, जो कोशिशूं वठे पियो, उन जो पीपल्स पार्टी के पंजाब जे अंदर को फायदो थींदो या न थींदो, इहो सवाल हो जो एजाज अहमद साहब खां पुछो। एजाज अहमद साहब उन ते गुफ्तगू कई पे, वक्त वठणो पे जियो। जी एजाज अहमद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बिलावल भुट्टो पंजाब में यही बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो लीड कर सकती है एक तो क्राइसिस की सिचुएशन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो पब्लिक ओपिनियन को जो है वो मोल्ड करने की कोशिश करती है और लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। दूसरा, अगर आप हकीकत में भी देख लें तो 2018 की दोनों जमातें जो पंजाब से हैं, नून लीग और पीटीआई, या 2024 में भी देख लें कि दोनों जमातें जो है वो उनका जो फोकस था या उनका जो था, उनका एतमाद जो था वो एस्टेब्लिशमेंट पर था कि एस्टेब्लिशमेंट हमको जितवाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि हम वो जमात हैं जो आवाम को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, जो आईन पाकिस्तान को उसकी ओरिजिनल हालत में बहाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही 18वीं तरमीम दी थी, हमने ही आइन बनाया था और हम ही वो हैं जो आवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं, मुश्किलात को हल कर सकते हैं, मईशत को संभाल सकते हैं। अच्छा सानी साहब, तहां जो टेक छा है इन ते? त भई ही जेकॾहिं 23 सूबा जंहिंखे पाण चऊं नंढा सूबा, उन्हनि जे लीडरशिप ऐं उन्हनि जी जेके रिप्रेज़ेंटेटिव पार्टीज़
उन्हनि जे तरफ़ां ई सॼी मूव वॾे सूबे जे तरफ़ां कोन्हे। उन में किथे ईअं त कोन्हे त हीअ जेके 18वीं तरमीम में जेके मिलियल शयूं आहिनि उन ते ई कॉन्सेंसस हुजे ऐं बज़ाहिर इहो जेको ॾेखारे थो वञे त भई हीअ आहे जुडिशल हवाले सां जेके शयूं आहिनि, पर अञा ताईं छाकाणि जो मसइलो ज़ाहिर न कयो वियो आहे तंहिंजे करे वधीक शक थींदा। बाक़ी इन ते PMLN खे क्लियर थी अचिणो पवंदो, इहा तव्हांजी ॻाल्हि भज़नाइती आहे। अच्छा, हाणे डॉक्टर शाहनवाज़ जे क़तल जे हवाले सां जेको केस थियो ऐं क़तल जो मामिलो थियो, उनखां पोइ जेका सिंध गवर्नमेंट जेके इनिशिएटिव वरिता आहे, पहिरीं इंक्वायरी कमेटी थी, उनखां पोइ सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जेका आहे उन जे तरफ़ां वफ़द फैक्ट फाइंडिंग मिशन ते जेको वियो, उन रिपोर्ट जेका आहे उहा पंहिंजी हुकूमत खे ॾेई छॾी आहे। उहा रिपोर्ट पधरी थी आहे ऐं इक़बाल लेथो साहब जी सरबराही में उहो जेको फैक्ट फाइंडिंग मिशन हुयो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो, उन्ही जेका इहा रिपोर्ट पधरी कई आहे। असांजी साहब तव्हांजी नज़र मां बि उहे उनजा कुझु पोर्शन मुंहिंजी नज़र मां गुज़रिया। उन में जेका सभ खां वॾी जेका ॻाल्हि आहे, हूं त ख़ैर ज़ाहिर आहे त इलाही सारा हिकिड़ो मिंट तव्हांजी ॻाल्हि रोकियां थो, छाकाणि त इक़बाल लेथे साहब असांखे जॉइन कयो आहे ऐं जेके आहिनि पंहिंजो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सरबराह बि आहिनि, उन्ही जो पंहिंजो थोरो टेक वठूं था। जी लेथो साहब, तव्हांजे प्रोग्राम में भली का अचूं था। छा फाइंडिंग्स आहिनि तव्हांजे इदारे जूं हिन पंहिंजो शाहनवाज़ जे क़तल जे बारे में, डॉक्टर शाहनवाज़ जे क़तल जे बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ह्यूमन राइट्स कमीशन पंहिंजी रिपोर्ट असां मीरपुर ख़ास में जारी कई से। असांजे जेके कमीशन जे इंक्वायरी जो स्कोप जेको हो वो सिर्फ़ फेक एनकाउंटर या स्टेज जे एनकाउंटर ताईं लिमिटेड न हो ऐं उनजा सॼा जेके पासा हुया लीगल, सोशोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हनि सभिनि शयुनि खे असां एनालाइज़ कयोसीं। ऐं वॾी फाइंडिंग हिकिड़ी त पहिरियां असांजी इहा ई आहे त पाकिस्तान में बशमूल सिंध में जॾहिं बि बिलाशमी जो सेक्शन जेको इन्वोक थिए थो 295C, त जॾहिं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जे तरफ़ां गाइडलाइंस ॾिनल आहिनि त इन्हनि FIR दाख़िल करण खां पहिरियां उन्हनि जी हिकिड़ी SOP आहे, मैकेनिज़म आहे त पहिरियां त हिन केस में उहा जेका 295C जो जेको सेक्शन लॻायो वियो उहो हरीडली लॻायो वियो ऐं उहा जेका प्रोसीजरल जेका डिविएशन हुई नंबर 1 उहा थी। नंबर 2 असां इहा हाईलाइट कई आहे त जॾहिं उहा FIR 17 तारीख़ ते थी आहे, तव्हां 18 ताईं 17 ऐं 18 ते उन्हनि जे पुलिस जूं टीम से मोकिले करे अरेस्ट खे इफेक्ट करायो था, पर तव्हां पीका एक्ट जेको आहे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जेको आहे साइबर क्राइम कॉन्करेंटली जुरिसडिक्शन आहे FIA जी ऐं पुलिस जी, त तव्हां उनखे टेक्निकल सपोर्ट वठणी FIA खां टू असर्टन के ही शइ जेका बिकॉज पुलिस वटि उहा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कोन्हे त उहो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करण खां बग़ैर तव्हां उनजी अरेस्ट खे इफेक्ट करण जे लाइ तव्हां पंहिंजो एॾो ह्यूमन रिसोर्स जा रिसोर्सिस लॻायो पिया त इहो बि हरीडली कॉल्ड हुयो। उन खां पोइ अरेस्ट जॾहिं तव्हां कयो था त कराची में तव्हांखे अरेस्ट उते उन जुरिसडिक्शन में एंट्री रखाइणी हूंदी आहे। चलो तव्हां एंट्री न रखाई आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त हीउ सेंसिटिव मैटर आहे। इस्लामाबाद खां वठी पंजाब खां वठी ॿियनि इलाइक़नि में तव्हां इन जो ट्रांज़िट रिमांड तव्हांखे वठिणो हुयो। तव्हांखे ख़बर हुई त हुनजी लाइफ एट रिस्क थींदी जेकॾहिं हुन अक्यूज़ खे तव्हां उन पंहिंजे होम डिस्ट्रिक्ट में खणी वेंदो। त इहा शइ असां फेल्यूअर हाईलाइट कयो आहे। उन खां पोइ पोस्टमार्टम जी जेका रिपोर्ट आहे ऐं जेका FIR आहे उनजे अलेज एनकाउंटर जी उनजी जेके शयुनि में मिसमैच आहे, ॿियो मोर इम्पोर्टेंटली जेको पुलिस जी कमीशन जे मेंबर्स खां कमीशन जे चेयरपर्सन खां पहिरां डिनायल हुई त असांखे कस्टडी न मिली आहे। तो इहे उन खां पोइ जेको सॼो इन्वायरमेंट आहे एक्सट्रीमिज़म जो, साउंड सिस्टम जी रेगुलेशन जो, फोरेंसिक साइंस न हुजण जो, विटनेस प्रोटेक्शन जो ऐं जेको हिकिड़ो हेट स्पीच आहे, डिसइंफॉर्मेशन आहे, त इन सॼनि एस्पेक्ट्स खे असीं फयाज़ एड्रेस कयो आहे। अच्छा नेतो साहब, जेका हेट स्पीच जी तव्हां ॻाल्हि कई, हिकिड़ो त तव्हां जेका ॻाल्हि कई त शुरूआती तरह ते
जेको मतिलबु आहे त इहो ब्लेस्फेमी जो कंहिंखे नामज़द कजे कंहिं FIR में, उन जे लाइ जेको ख़ुदि प्रोसीजर आहे उहो त थियो ई कोन, तंहिंजे करे उहो उन ते उहा FIR ठहे पई या न पई ठहे, इहो ख़ुदि मतिलबु शुरूआत ई ग़लति थी। पर हेट स्पीच जे हवाले सां असां ॾिसूं था त मुसलसल इहो इंसिडेंट थियण खां पोइ बि जेका आहे हेट स्पीचिस, हिकिड़ा माण्हू अचनि था पिया ऐं उहे अची माइकनि ते माइक झले चवनि था त फलाणनि लाइ जेकॾहिं सिंध रेड लाइन आहे त असांजे लाइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतिलबु इन तरह जे नबी साईं जो नालो खणी जेको माण्हुनि में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई पई वञे, उहो सिलसिलो अॼु ॾींहं ताईं हलंदड़ आहे। मतिलबु उहो रुकियो न आहे को। छा पाकिस्तान जे आइन जे अंदरि या असांजे कानून जे अंदरि को इन तरह जो न आहे त इन तरह जूं स्पीचिस जेके थियनि थियूं पियूं, इन्हनि खे को बंजो ॾेई सघिजे या इन्हनि जे बारे में को क़दम खणी सघिजे, छाकाणि उहो त सिलसिलो अॼु ॾींहं ताईं हलंदड़ आहे। ॾिसो, जेको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे, आर्टिकल आइन जो जेको 19 आहे, या जेको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे 19A आहे, इहे आइन में ॿई जेके फंडामेंटल राइट्स आहिनि, इहे एब्सोल्यूट राइट्स न आहिनि। इहे सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस आहिनि, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशंस आहिनि, सब्जेक्ट टू लॉ आहिनि। जंहिंजे करे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी ऐं हिकिड़ो त कॉन्स्टिट्यूशन में इन जी सेफ गार्ड रखियल आहे, जेको तव्हां सुवाल कयो। ऐं ॿियो, सिंध में स्पेशल लॉ आहे, सिंध साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015, जंहिंजो सेक्शन 3 आहे त तव्हां हेट स्पीच नथा करे सघो, ऐं जेको करण वारो आहे उनखे सेक्शन 4 में तव्हां ऑफेंस खे पनिशमेंट ॾेई सघो था। हाणे जॾहिं बि परमिशन अहिड़नि जलसनि जी, जुलूसनि जी, प्रोसीशंस जी, त उहो आइदर डिप्टी कमिश्नर परमिशन ॾे थो इन कंसल्टेशन विथ SSP कंसर्न, त उन्हनि खे इंश्योर कराइणु खपे त तव्हां कंहिं जी अहिड़ी शइ जी हेट स्पीच जेका डिसइंफॉर्मेशन में वञे, इंसाइटमेंट में वञे, ऐं जेका नैरेटिव जेको आहे नैरेटिव खे, वायलेंट नैरेटिव खे अपील करे, त उहे उन में सिंध साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट में अचनि था। ऐं तव्हांखे मां ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां, मुंहिंजी रिपोर्ट कमीशन में ॾिनी वई आहे त जेके डिस्ट्रिक्ट एंड पीस कमेटीज़ तव्हां, उहो सिर्फ़ु उन्हनि खे 12 रबीउल अव्वल जी ऑर्गेनाइज़ेशन या 9-10 मुहर्रम जे लाइ न कयो इस्तेमालु, तव्हां मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र जे माण्हुनि खे ऐं सिंध हुकूमत SNGD एंड होम डिपार्टमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट कई आहे उन्हनि जी कंपोज़िशन, त हुन में तव्हां माइनॉरिटीज़, चाहे हिंदू हुजनि, क्रिश्चियन हुजनि, मुस्लमान हुजनि, सभिनी जी इंटरफेस ते जेको तव्हां ॿुधायो पिया त सिंध साउंड एक्ट जे हवाले सां जेको तव्हां ॿुधायो पिया, ॿिया जेके तव्हां शिकूं आइन जे ॿुधायो पिया, हिन सॼे इंसिडेंट में जीअं मूं चयो त उहा हेट स्पीच अॼु ॾींहं ते हले थी पई, पर सिंध हुकूमत जे पारां इन हेट स्पीच जे कॉन्टेक्स्ट में कंहिं बि माण्हू ते का FIR न थी आहे, कंहिंजे ख़िलाफ़ को क़दम न खयो वियो आहे। उहा स्पीचिस सोशल मीडिया ते केतिरियूं जेको आहिनि वीडियोज़ पियूं आहिनि, जेके माण्हू अची चवनि था त फलाणनि जेको सिविल साइड जे माण्हुनि खे हीअं कयोसीं, फलाणनि खे हीअं कंदासीं, फलाणनि खे हीअं कंदासीं। उहो मवाद सोशल मीडिया ते एॾो घणो पियो आहे ऐं उन हवाले सां गवर्नमेंट जो बिल्कुलु ॼण चओ त लातालुक बणियल आहे। उनजो इहे जेके शिकूं तव्हां ॿुधायो था पिया, इहो असांखे किथे अमल दरामद उन्हनि जे मथां या उहे इनवोक थींदे नज़र न पियो अचनि। तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। ऐं मां पंहिंजी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटीज़ होम डिपार्टमेंट खे रिकमेंडेड कयो आहे, माइनॉरिटी अफेयर्स खे रिकमेंडेड कयो आहे, कमिश्नर्स खे, DCs खे असां इहे रिकमेंडेशन्स ॾिनियूं आहिनि। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजिस जे सिलेबस में वञे। अहिड़े तरीक़े सां विटनेस प्रोटेक्शन आहिनि, त सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जेतिरो रोल आहे लॉ एंड पॉलिसी खे रिव्यू करणो आहे ऐं रिकमेंडेशन करणो आहे। एज ए स्टेटरी बॉडी कमीशन इज़ डूइंग इट्स जॉब। हाणे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कमु आहे, एग्जीक्यूटिव जो कमु आहे त उन्हनि खे इम्प्लीमेंट कराइणु। सांगी साहब, हा, मूं इहो पियो चयो त इन ते अञा ताईं सिंध में जेका बेचैनी आहे उहा मौजूदु आहे ऐं उन ते माण्हू जेकॾहिं से एहतजाज कनि पिया, त हिन वक़्त ताईं जेके बि हुकूमत जा खयल क़दम आहिनि, उपाउ आहिनि, उहे नाकाफ़ी रहिया आहिनि। अञा ताईं मतिलबु जेके इन इनकाउंटर जा, जंहिंजे लाइ ॾेथे साहिब जी रिपोर्ट में बि आहे त उन्हनि खे चयो फैब्रिकेटेड इनकाउंटर,
माने जुड़तू मुक़ाबिलो। पुलिस भी चयो, हा पुलिस जी हा इंक्वायरी हा, त उन खे मतिलबु त उन में जेके बि जवाबदार उहे गिरफ़्तार कोन थिया आहिनि। अच्छा, साॻी तरह सां इहो सॼो मामिलो FIA में वञे थो, या जेतिरियूं वायलेंसियूं ॿुधायूं पए ॾेथे साहब ते रिपोर्ट में जेके फाउंड कयूं आहिनि, त उन जे करे हीअ त इम्पॉर्टेंट आहे त इन जी जुडिशियल इंक्वायरी थिए। इन जी JIT मुंहिंजे ख़्याल में एतिरो हू न करे सघंदी, छो त उते जेको उमरकोट जो वाक़ियो आहे, पोइ हिन जी गिरफ़्तारी आहे, उनखां पोइ मीरपुर ख़ासि जे हदुनि में उनजो जेको जुड़तू मुक़ाबिलो आहे, उन जो क़तल आहे, उनखां पोइ वापसि उते वञी उनजी जेका बॉडी थी पूरी वञे, उन जो जेका उन सां बेरहमती थिए उहो सॼो आहे। त ही ऐं प्लस इहो त इन में जेको सॼे जो सॼो मतिलबु सोशल मीडिया ते ऐं जेको हेट स्पीच जी पाण ॻाल्हि पिया कयूं, उन खे जहिड़े सां कयो वियो त इट नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट शुड बी जुडिशियल वन, ऐं उहा ई जेका आहे सा एड्रेस करे सघंदी जेका माण्हुनि में एॾी मूंखे त लॻे थो त हाणे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन खां वधीक मसइलो आहे त हाणे कदम खणजनि, छाकाणि त पुलिस जी इंक्वायरी बि पुलिस खे ॾोहारी करार ॾिनो। सिंध ह्यूमन कमीशन जी रिपोर्ट में बि इहो चयो वियो त फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जॾहिं हुन माण्हू ते इल्ज़ाम लॻो, उतां खां FIR कटजण खां ग़लति प्रोसेस थियो आहे, वेंदे उन जे क़बर में लाहिण ताईं जे मामले ताईं सभु रॉन्ग डूइंग्स थियूं आहिनि। हाणे त कदम खणण जी ॻाल्हि आहे न, हाणे हुकूमत कदम खणे या पुलिस जा जेके ऑफिसर्स आहिनि उहे हिन ते गिरफ़्तार न थिया आहिनि, जिन जे बारे में नंबर ॿी ॻाल्हि आहे जेके हेट स्पीचिस कनि था पिया उन्हनि जे लाइ को हुकूमत जेको आहे उन्हनि ते उहो नथी करे पई। हाणे कदम खणण जी ज़रूरत आहे। हाणे त मिसाल तौरु इन्वेस्टिगेशन वारो मरहलो जेको जुडिशियल करे या उहो करे, उन हवाले सां शयूं त हाणे ॿिन्ही रिपोर्ट्स में वाज़े थी वियूं त हू माण्हू जेको क़तल थियो उहो क़तल जेको कंहिं बि तरह ते उहो सही न थियो, इहो जे मथां जेको इल्ज़ाम लॻो ऐं FIR कटी उन इल्ज़ाम जी, उहा बि हाणे सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन चए थी त उन जे बारे में बि जेको ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस आहे उहो न कयो वियो। हा, इहो तव्हां सही था चओ, मतिलबु त इहो कदम खणण जी ॻाल्हि आहे, पर छाकाणि जो इहो देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स, ऐं उहे सभु जेके आहिनि से लीड हेॾां था कनि उनखां पोइ बि थींदा रहनि, तंहिंजे करे हिते हिकिड़ो केस कोन्हे, 4-5 केस थी था वञनि न। मेडिकल रिपोर्ट कोन आई आहे अञा ताईं, हू जेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उहा कोन आई आहे, वग़ैरह वग़ैरह सभु शयूं। त आउं सम्झां थो उहो पंहिंजी जाइ ते आहे। कदम खणण वारी ॻाल्हि बिल्कुलु उहा पहिरीं सूरत में थिए, उन सां घटि में घटि माण्हुनि में एॾी वॾी जेका बेचैनी आहे उहा ख़तमु थिए, प्लस इहो त जेके हेट स्पीचिस आहिनि उहो बंदि थियणु खपनि। बड़ी मेहरबानी सांगी साहब, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो एजाज साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, तो साहब तान बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो मेरे मेजबान फयाज नशकीन इजाजत असन बिनी पॉलिटिकल न्यूज़ के भी इजाजत प्रोग्राम के बारे में फीडबैक जरूर दींदा, पंजी राय का आगाह कंदा ऐं आवाज़ TV जी वेबसाइट ते तहां उन हवाले सां पंहिंजा कमेंट्स भी छॾे सघो था। वॾी मेहरबानी, सदाईं।